Okay, assalamu alaikum everyone. Let's start the vectors one now. So we are going to quickly go through the key concepts of P3 vectors in this session. So first of all, you need to have some basic background from O levels. Vectors किस तरह से represent होते हैं from A to B. For instance, आपके पास एक vector यहाँ पर नजर आ रहा है. You can say this is AB vector, in which A is the starting point and B is the ending point, right? You need to be aware of this triangle rule. If you have a vector like this from A, going from A to B, then from B to C, then AC is equivalent to saying AB plus BC, or AB plus BC is equal to AC. यहाँ पे key क्या है? That this point here and this point here, they are the same. तो A से B पे जा रहे हो, B से C पे जा रहे हो, that's the same thing as saying कि आप A से C पे जा रहे हो, right? So you can write it like this. It's the addition rule that you need to be aware of. And then you need to be aware of the position vectors. If you have a line AB here that you can see here, a vector AB, इसमें A का position vector is OA और B का position vector is OB. इसको you will say AB is equal to OB minus OA, position vector of the second point minus the position vector of the first point. This is extremely important. ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, पहला इतना नहीं भी होता, ये बहुत होता है. AB vector is position vector of B minus position vector of A. दूसरे वाले का position vector minus the position vector of the first one. ठीक है? Okay. आपको पता होना चाहिए. 3 dimension के अंदर you will often see vectors like this which have 3 components. So for instance, you have 2, 5, and 7. So इसमें 2 is the x component, 5 is the y component, and 7 is the z component. Right? इसका magnitude किस तरह figure out करते हैं? The length of the vector. You just square each component. So that's 2 square plus 5 square plus 7 square, and then you take square root of that, and that is the magnitude of that vector, the length of the vector. ठीक है? अब इसी फॉर्म को, ये जो आपकी जो वेक्टर फॉर्म है ना, इसको हम कभी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. I think it's called the Cartesian form, in which the x component will have this I here. I, j, k basically unit vectors होते हैं अपनी in directions के अंदर. 2i, right? So 2 into I, that's the x component. 5j, that's the y component, and 7k, that's the z component. Right? तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो. तो अच्छा, इसके बाद मॉडुलस का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन गया था? Let me just remind you of that. If you have a vector of this form, x, y, z, then the modulus of that vector is going to be x squared plus y squared plus z squared and square root of that. Okay. Now let's consider this example. You've got, let's say, a vector that's OA and a position vector of a point that's OA and position vector of another point that's OB. आपने AB find करना है. AB आप किस तरह figure out कर सकते हो? OB minus OA. You just subtract the vectors like this. Subtraction उसी तरह होती है. Corresponding जो आपके components हैं उनको आप subtract कर दोगे. You find AB from here. अब इसको use करके you can find something called unit vector in the direction of a vector. So unit vector क्या होता है? Unit vector is a vector that has magnitude 1. ठीक है? Magnitude इसका 1 होता है. Unit represents 1. Unit vector एक ऐसा vector होता है जिसका magnitude 1 होता है. Unit vector किस तरह से figure out करते हैं? Whatever is the vector that you have. For example, अगर आपको AB की direction के अंदर unit vector figure out करना है, for example, let's say this is the direction of AB, ठीक है? इसका कुछ भी magnitude है, इसका magnitude यहाँ पर हमें पता है, that's square root of 19. हमें इसी direction के अंदर एक ऐसा vector देखना है जिसकी जो length है वो 1 हो. ठीक है? So how do you figure that out? Vector को आपने divide कर देना है उसके magnitude के साथ. So divide तो नहीं कर सकते normally vectors में, तो आप क्या करोगे? 1 over square root of 19 जो उसका magnitude आया था, square root of 19 magnitude आया था, 1 over square root of 19 से आपने multiply कर दिया उस vector को, you get something like this. When you multiply that inside, ये scalar multiplication है basically. जो भी आपके पास बाहर number था उसको आपने
अंदर हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हर कंपोनेंट के साथ, ठीक है। सो वन के साथ भी, -3 के साथ भी और 3 के साथ भी, एंड दिस इज नाउ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। इसको हम इस तरह से ए बी हैट से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर, ऊपर आपके पास छोटी सी हैट होती है। it's part of the syllabus, but it's not tested very often, but you should be aware of this. अच्छा, addition and subtraction of vectors, we already done that above, but just as a reminder, addition subtraction में क्या होता है? Just add and subtract corresponding components. 2 plus 7 9 आ गया, 5 minus 4 1 आ गया, 7 minus 3 4 आ गया. Just add and subtract corresponding components. You've also seen scalar multiplication. नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर के साथ, तो वो क्या होता है? हर कंपोनेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। -3 into 5, -3 into 8, -3 into 6, हर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा। अब ये वेक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जो आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर किया है ना बाहर, न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी, इट्स 3 times the original vector, उसके 3 times है, और वो पैरेलल भी है उसके, इवन तो नेगेटिव साइन की वजह से उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, लेकिन है अभी भी वो सेम लाइन के ऊपर, पैरेलल स्टिल, ठीक है। सो स्केलर मल्टीपल्स जो होते हैं ना वेक्टर्स, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और ये नंबर आपको बताते हैं कि कौन सा कितनी टाइम्स है एक दूसरे के। सो सेकंड वेक्टर इज 3 times the first one. अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स आप किस तरह से फिगर आउट करते हो? If two vectors A and B are parallel, they have to be scalar multiples of each other. जैसे हम यहाँ पे बनाया ना, ये vectors parallel हैं, क्यों? क्योंकि क्या आपने एक scalar number के साथ multiply किया उनको सबको। It's of this form: A equals K times B, some constant times the other. अगर A और B दो vectors है, तो वो एक दूसरे के scalar multiples होंगे like this. Now, for instance, if you have two vectors like this, you've got a vector 4, -5, and 7. You've got another vector -12, 15, and -21. तो एक तरीका इसका क्या हो सकता है इसको चेक करने का? You can say this is आप corresponding components को ना उनको divide कर लो. So 4 divided by -12, right? That gives you -1/3. -5 divided by 15, that also gives you -1/3. 7 divided by -21, that also gives you -1/3. If all of these turn out to be equal, अब एक corresponding components जब divide करते हो, if all of those ratios turn out to be equal, that means they are parallel, right? Because उनमें same ratio आ रही है, वो same scalar multiple. या फिर दूसरा तरीका ये, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो: A equals K times B, one vector equals K times the other, और K की values figure out कर लो. So आपके पास 3 equations आएंगी, 3 K की values आएंगी. If they are again all equal, that would mean that they are parallel. अगर कोई भी एक value different आती है, that would mean they are not parallel. So all values have to be equal there for vectors to be parallel. अच्छा. Then you have something that's called the dot product. So if you have two vectors A and B, A के components are A1, A2, and A3. B के components are B1, B2, and B3. A dot B is called the dot product or the scalar product of those two vectors. Vectors का dot product, ठीक है? किस तरह evaluate करते हैं? Corresponding components को multiply करते हैं. So if you have A1 here and B1, A1 और B1 multiply होंगे, A2 और B2 multiply होंगे, A3 और B3 multiply होंगे, और ये तीनों आपस में add हो जाएंगे. Corresponding components को multiply कर देना है और उनको add करते जाना है, ठीक है? So for instance, if you have 3, 5, 8, -4, 7, -2, the corresponding components multiply किए, 3 into -4 plus 5 into 7 plus 8 into -2, that gives you 7 as the result. That's the dot product. That's one way to evaluate this. Dot product का एक और formula भी होता है, आपको formula दिया होता है. That's A dot B equals modulus of A into modulus of B equals cos of theta. And this is often used to find angles between vectors, between some vectors, between some lines. Angle find करने के लिए आप अक्सर इसको use करते हो. अब यहाँ पे A का modulus, that's the magnitude of A basically. B modulus is magnitude of B. और left side पे आपके पास वही dot product आ रहा है, A dot B. Theta here represents the angle between the vectors. Theta is the angle between the vectors. Okay. Acha. So if you have two vectors like this, A and B, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, how can you find the angle between these two vectors, right? इनके दरम्यान में angle आप इस तरह से figure out कर सकते हैं. So you apply that formula here. A dot B equals modulus of A into modulus of B into cos of theta. So that's what we're doing here. So this is A on the left,
So this is A dot B that's equal to A का modulus into B का modulus into cos of theta. That is what is happening here. ठीक है, A dot B किया, modulus of A into modulus of B, modulus के लिए वही फॉर्मूला जो ऊपर हमने देखा था, into cos of theta. ठीक है, इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास आएगा 4 into -3 plus 5 into 4 plus -3 into 7 that turns out to be -13. उसी प्रोसेस से आपने डॉट प्रोडक्ट इवैल्यूएट किया, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट इवैल्यूएट कर लिया, ठीक है ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये इवैल्यूएट हो गया लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड पे मॉडल आया आगे स्क्वायर रूट ऑफ 50 into square root of 74 into cos of theta. You can find the value of theta from there. यहाँ तक बस थीटा आ जाएगा. ठीक है, अब कभी ऑब्ट्यूज आएगा कभी एक्यूट आएगा डिपेंडिंग ऑन द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होता है तो आपका एक्यूट एंगल आता है, डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है तो ऑब्ट्यूज आता है. तो वो डिपेंडिंग ऑन उसने एक्यूट पूछा है या ऑब्ट्यूज पूछा है उसको वो वैल्यू दे दो. उसने एक्यूट एंगल पूछा होता है अक्सर, तो उसमें आप अगर ऑब्ट्यूज आपके पास आ रहा है तो आप उसको एक्यूट 180 में से वो माइनस करके आप उसको एक्यूट एंगल दे दो. बिकॉज देखें दोनों ही एंगल्स हैं बिटवीन लाइंस. 102.3 आपका एक साइड वाला एंगल है, ये उन्हीं दोनों लाइंस के दरमियान में है. 77.7 आपकी दूसरी साइड वाला एंगल है. तो डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड, उसके हिसाब से आप उसको वो रिजल्ट दे दो. अच्छा, ये दो लाइंस के दरमियान में तो एंगल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कभी कभी ना वो पूछता है इस तरह से स्पेसिफिक एंगल, फॉर एग्जांपल द एंगल PAR. उसने एंगल आपसे पूछा होता है यहाँ पे एंगल PAR, ये एंगल क्या है, दिस एंगल थीटा. अब यहाँ पे ना आपको केयरफुल रहना है थोड़ा सा कि आप डायरेक्शन किस तरह से चूज कर रहे हो, आप वेक्टर्स यूज करोगे इस फॉर्मूला के अंदर. ओके, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शन. अब डायरेक्शन किस तरह से चूज करनी है, एक तो पॉसिबिलिटी है यू से AP एंड AR. नाउ व्हाट आर वी डूइंग हियर, A से दोनों साइड्स पे अवे जा रहे हैं, सो बोथ हैव देयर टेल्स एट A. एक ये तरीका हो सकता है AP और AR देख लो. दूसरा तरीका ये हो सकता है दोनों की डायरेक्शंस A की तरफ हो, A की तरफ दोनों का हेड हो. दिस इज द अदर पॉसिबिलिटी. ठीक है, दैट कुड बी PA एंड RA. बोथ ऑफ देम आर फाइन. ये नहीं होना चाहिए कि एक का हेड A की तरफ हो और एक की टेल A की तरफ हो. दैट वुड गिव यू अ रॉन्ग रिजल्ट. ठीक है, आपको इस एंगल की बजाय ये बाहर वाला एंगल दे देगा एंड दैट विल मेक यू लूज मार्क्स. दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना तो वो तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन यहाँ उसने PAR एंगल पूछा था. PAR एंगल तो वही थीटा ही है, वो नीचे वाला एंगल नहीं बन रहा. तो इस यहाँ पे आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना होता है कि उसने स्पेसिफिक एंगल पूछा. हैव टू बी केयरफुल, या तो ये जो पॉइंट कॉमन पॉइंट है उस पे दोनों की टेल्स आ रही हो या दोनों के हेड्स आ रहे हो. ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है. अच्छा, आई मेंशन दिस अर्लियर एज वेल, जब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है उसका मतलब होता है कि एक्यूट एंगल है. जब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो उसका मतलब है कि ऑब्ट्यूज एंगल है. अब कभी कभी उल्टा भी आपको यूज करना पड़ जाता है. उसने आपको एक एंगल दिया हुआ है लाइक दिस, फॉर इंस्टेंस उसने आपको यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन के अंदर फॉर एग्जांपल PAR उसने एंगल दिया हुआ है कि दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. लेट्स से अगर उसने ऑब्ट्यूज बताया हुआ है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट मींस कि जो डॉट प्रोडक्ट आपका है ना वो नेगेटिव आना चाहिए. तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, तो यू मे हैव टू इग्नोर द पॉजिटिव वन. इट वर्क्स बोथ वेज. अगर आपका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, एंड सिमिलरली हियर एज वेल ऑब्ट्यूज एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. अच्छा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स. वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. ये क्यों होता है, बिकॉज cos थीटा थीटा 90 परपेंडिकुलर वेक्टर जो थीटा एंड 90 हो जाता है ना, cos 90 जीरो होता है, उसकी वजह से सब कुछ जीरो हो जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ जाता है. परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर आपने प्रूव करने हो ना तो आप क्या करते हो, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड यू से दैट दिस इफ द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो एंड दैट प्रूव्स दैट the vectors are perpendicular. और it works the other way around as well. अगर आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो that means a vector is perpendicular. Okay, for instance you've got these two vectors 2 0 minus 4 and 10 8 minus 5. You have to show that these vectors are perpendicular. What do? You find their dot product. The dot product turns out to be zero and that means they are perpendicular vectors. पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स का एक तो वही तरीका है जो ऊपर रेशियो यूज की. ये भी होता है कि पैरेलल वेक्टर्स में क्योंकि cos थीटा की वैल्यू या तो जीरो है, थीटा की वैल्यू या तो जीरो है, थीटा की वैल्यू 180 है. जीरो के ऊपर you get A dot B equals modulus of A into modulus of B.
थीटा 180 अगर हो उल्टी डायरेक्शन के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो 180 डिग्रीज के ऊपर आपके पास cos -1 आ जाता है। उसकी वजह से you get a dot b equals minus modulus of a into modulus of b। पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, उनमें ये रिलेशनशिप होता है, but again this is optional, this is not necessary to know। it's just a side point। पैरेलल वेक्टर्स अगर आपको शो करने हो, अब वही मेथड ऊपर वाला यूज करोगे जहां पे आपकी रेशियो जो है आपने चेक की कि it turns out to be equal for all of them। Okay, now let's come to equation of line। equation of line वेक्टर फॉर्म में किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। सो इट्स ऑफ दिस फॉर्म बेसिकली, r equals a plus lambda into d। अब इसमें r क्या रिप्रेजेंट करता है? r is a general point on the line। जिस तरह y equals mx plus c के अंदर y equals mx plus c जो होता है, यहाँ पे आपके ये जो y और x होते हैं, these are coordinates of a general point। क्योंकि वो स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं होती, इट्स अ जनरल पॉइंट। आपके m different values of x के ऊपर different values of y आ रही होती है, right? It's a general point। इस तरह यहाँ पे r is the general point, ठीक है? r को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो that's basically x y z like this, right? वो it's a general point। a is position vector of a known point on the line। आपको पता है कि एक पॉइंट लाई करता है लाइन के ऊपर, वो आपका a है, ठीक है? जो भी पॉइंट आपका लाइन के ऊपर लाई करता है, आपको पता है that would be a। ओके अब इसमें एक ही जरूरी नहीं है हमेशा एक ही वैल्यू, आपको मल्टीपल पॉइंट्स पता है, उनमें से आप कोई भी डाल सकते हो यहाँ पे। अच्छा, प्लस लैम्डा इनटू डी। डी जो है ना यहाँ पे, दैट्स द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। सो यू नीड टू हैव एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन और पैरेलल टू द लाइन, ठीक है? या तो उसने दिया होगा कि पैरेलल है किसी और वेक्टर के, वो डायरेक्शन होगी उसकी, या फिर उसने 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उनको यूज करके आप डायरेक्शन फिगर आउट कर सकते हो। We'll see a couple of examples। और ये जो lambda है ना, that's a parameter। That's a parameter that can take any real value। So basically lambda की different values input करते हैं ना, तो हम हमारे पास different points आ जाते हैं उस लाइन के ऊपर। So कोई भी आप lambda की value input करो, that gives you a point on the line, right? That gives you a point on the line। अच्छा, so इसी फॉर्म को ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, x y z in place of r, a is a specific point, that's x naught y naught z naught, specific point, plus lambda, that's a scalar, that's a constant, not a constant, sorry, it's a parameter, लेकिन एक number होता है, it's not a vector। और ये डायरेक्शन वेक्टर आपका d जो है, that's d1 d2 d3। okay, so इस फॉर्म में भी आप लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। अच्छा, find the equation of the line passing through 2 1 3 which is parallel to 1 3 and -2। right? The equation of line की हमारे पास फॉर्म क्या थी? It was r equals a plus lambda into d। So r equals a is the specific point, that's 2 1 3, plus lambda into direction, it's parallel to 1 3 and -2, so that's the direction vector, direction उसकी 1 3 -2 है, this is the equation of the line, right? It's as simple as that। अच्छा, अगर उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, for example there are 2 points a and b that lie on the line, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको पता है oa and ob। You have to find the equation of AB। AB की इक्वेशन फिगर आउट करनी है। अब आप क्या करोगे? आपको डायरेक्शन वेक्टर फिगर आउट करना पड़ेगा पहले। AB फाइंड करना है ना, तो डायरेक्शन वेक्टर के लिए आप AB का वेक्टर फाइंड कर लो। AB वेक्टर कैसे आएगा? You've seen that before, that's OB minus OA, position vector of B minus position vector of A। You use that to find the vector AB। AB वेक्टर आपने फिगर आउट कर लिया। Now this is the direction of the line। This is the direction of the line। This is the direction vector of the line। ठीक है? That's 1 3 and 4। अब आप क्या करोगे? You got that standard form, r equals a plus lambda d। a की जगह आप कोई भी पॉइंट इनपुट कर दो। You got 2 points 1 2 3 and 2 5 7, दोनों में से कोई भी इनपुट कर दो, plus lambda into direction, direction is 1 3 4। वो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अच्छा, इसी लाइन की इक्वेशन को आप इस तरह भी अक्सर रिप्रेजेंट कर सकते हो IJK फॉर्म के अंदर। उसने कभी-कभी क्वेश्चंस में भी इस तरह से दिया होता है, इनफैक्ट अक्सर इस तरह दिया होता है IJK फॉर्म के अंदर। सो मोस्टली जब हम सारी वर्किंग कर रहे होते हैं ना, वो वेक्टर फॉर्म के अंदर कर रहे होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो उस फॉर्म के अंदर, उसने उस तरह दिया हो, और अगर आपको इस फॉर्म में जाना हो तो आप ये भी जा सकते हो। होता क्या है, सिर्फ x कंपोनेंट के साथ i लग जाता है, y के साथ j लग जाता है, z कंपोनेंट के साथ k लग जाता है। तो
I यहाँ पे 1 2 3 को आप I plus 2j plus 3k भी लग सकते हो, 1 3 4 जो लिखा हुआ है, it's I plus 3j plus 4k. You can also write it in this form. Questions में अक्सर इस तरह दिया होता है, तो आपको वापस वेक्टर फॉर्म में जाना होता है to do things that you may have to do. अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको दो लाइंस के बारे में एंगल फाइंड करना है, तो आप बस उनकी डायरेक्शन वेक्टर्स उठाओ और उनके दरमियान में एंगल फिगर आउट कर लो, राइट? जो भी दो लाइंस है उनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे ना, डायरेक्शन वेक्टर्स में आप एंगल फाइंड कर लो, दैट विल बी द एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस. डायरेक्शन वेक्टर्स में एंगल किस तरह फिगर आउट करेंगे? वही मेथड पहले वाला, a डॉट b इक्वल्स मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos ऑफ थीटा. और a और b यहाँ पे क्या है? a and b will be the direction vectors of those two lines. Okay. Acha. Now let's come to the case when you have more than one line. अब दो लाइन से डील करो. अब skew lines क्या होती हैं? 3 dimensions के अंदर आपके पास basically 3 possibilities होती हैं. एक तो ये possibility हो सकती है that the lines are parallel, right? Parallel lines है 3 dimensions के अंदर भी, right? एक ये possibility हो सकती है कि lines intersect कर रही हैं एक दूसरे को, right? वो एक दूसरे से मिल रही हैं. There are a lot of lines that are not parallel and they also do not intersect because 3 dimensions के अंदर there's very high probability that even if the direction is not the same, your lines will not meet. Otherwise, you would have, you know, airplanes crashing all the time, but that doesn't happen because 3 dimensions के अंदर there's a very low probability कि आपकी इस तरह से दो lines meet कर रही हो. तो इस तरह की lines that are not parallel, lines that are not parallel and they do not intersect, parallel भी नहीं है और intersect नहीं कर रही, these lines are called skew lines, right? So आपको ये बताना चाहिए कि 3D के अंदर अगर दो lines हैं आपके पास, उनमें ये 3 cases possible हैं. They can be parallel, they can be intersecting, or they can be skew. Okay, how do you figure out these different cases? Lines के parallel है या नहीं है, वो कैसे check करते हैं? You just check their direction vectors. Direction vectors आप उनके देख लें. अगर direction vectors parallel हैं, इसका मतलब है lines parallel हैं, because direction vectors से तो उनकी direction बता रहे होते हैं. तो parallel check करने के लिए just use their direction vectors और उनको check कर लें कि वो parallel हैं कि नहीं. Direction vectors जो हैं, वो आपके पास parallel आते हैं कि नहीं आते. अगर direction vectors parallel आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो lines parallel हैं. For instance, in this case, we see we use -3, 2 and 1, and 6, -4 and -2. These are the direction vectors. इनकी ratios figure out की this turn out to be the same. इसका मतलब ये है कि they are parallel vectors. अगर सारी ratios same नहीं आती, इनमें से एक भी different आ जाती, इसका मतलब ये होता है कि they are not parallel. अच्छा, intersection किस तरह find करते हैं lines की? Let's say we've got two lines, AB. That's उसकी equation given है, r equals this, और एक और line है CD, उसकी equation भी given है, that's 1 1 0 and -2 -1 -4. क्या मैंने lambda mu highlight किया हुआ है? अगर आपके पास एक ही question के अंदर एक से ज्यादा equations हैं, तो अगर उसने दी हुई है खुद से, तो वो उसने उसके पैरामीटर खुद से different रखे होंगे, उसने different यहाँ पे symbols use किए होंगे. अगर आप figure out कर रहे हो, अगर आपने दो lines की equation find की है, उसने आपको find करने के लिए कहा है, use different symbols here, do not use the same symbols here. एक जगह आपने lambda use कर लिया, दूसरी जगह कुछ और use कर लें. It doesn't have to be a fancy symbol like this. आप कुछ मतलब S use कर लें, T use कर लें, anything that's not used already. ठीक है? Otherwise, आपके पास आप में confusion आएगी और clashes भी आएंगे. It will not work out correct for you जब आप इसको आगे किसी भी कहीं भी use कर रहे होंगे. ठीक है? अगर आपने दो लाइंस खुद से फाइंड किए, उनकी इक्वेशंस, उनके पैरामीटर्स डिफरेंट रखें. अगर एक लैम्डा है, दूसरा म्यू रख लिया, लाइक दिस. हाउ डू यू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेते हैं, राइट? 4 प्लस, इसको मतलब कंबाइन कर लिया हमने, इसको ऐड कर लिया, सिमिलरली इस पार्ट को भी ऐड कर लिया. तो 4 प्लस लैम्डा, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड पे ए बी की इक्वेशन. लेफ्ट साइड पे हमारे पास ए बी की इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, और राइट साइड पे हमारे पास आ रही है सी डी की इक्वेशन. Now remember, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फिगर आउट करने ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मतलब है? जहां पे वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी उस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस इक्वल है, एक सेम वैल्यू है इनकी. दैट्स व्हाई वी इक्वेट बोथ ऑफ देम. हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी करते हैं, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया. ठीक है, वी इक्वेट बोथ ऑफ देम. What happens is we get 3 equations from there.
तीनों कंपोनेंट्स इक्वल है, अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल है इसका मतलब है x कंपोनेंट भी इक्वल है, y कंपोनेंट भी इक्वल है, z कंपोनेंट भी इक्वल है, हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। we get these two equations. हमें करना क्या है, हमें इनमें से दो इक्वेशंस यूज करनी है, कोई भी दो कर सकते हैं, आप जो आपको आसान लग रही है वहां पे वो यूज कर लें। अगर तीनों एग्जिस्टिंग तो फर्स्ट और सेकंड फॉर एग्जांपल आपने यूज कर ली। दो इक्वेशंस को यूज करके आपने क्या करना है, उन पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, राइट। दो आपके पास अननोन्स है लैम्डा एंड म्यू, दो इक्वेशन से आपके पास उनकी वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, म्यू इक्वल्स -1 एंड लैम्डा इक्वल्स -1 फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन, ओके। तो आपने क्या करना है, उसको थर्ड इक्वेशन के अंदर इनपुट करना है जाके। अगर वो थर्ड इक्वेशन उससे सेटिस्फाई हो जाती है, यहाँ मैंने थर्ड इक्वेशन में इनपुट किया और वो थर्ड इक्वेशन उन लैम्डा और म्यू की वैल्यू से सेटिस्फाई होगी जो मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मिली थी। इफ दैट हैपेंस देन दैट मींस द लाइंस इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करती हैं और हम उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो हम अभी देखते हैं कैसे करते हैं। अगर ये वेरिफिकेशन स्टेप फेल हो जाता, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें जो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज मिली थी वो थर्ड इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करती, अगर that would mean that these lines are skew lines. That would have meant that these lines are skew lines. अगर वो ये वेरिफिकेशन फेल हो जाती है, अगर ये हो जाती है, अब इसका मतलब होता है कि skew lines होती प्रोवाइडेड दैट we've already checked के पैरेलल नहीं है, बिकॉज पैरेलल है फिर तो वो पैरेलल लाइंस है ना। स्क्यू के अंदर आपकी दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए, स्क्यू के अंदर दो कंडीशंस, आप अगर वो कहते हैं कि प्रूव करें कि कोई लाइन स्क्यू है, आपने दो कंडीशंस प्रूव करनी है। वन इज के दे आर नॉट पैरेलल, कि आपने चेक करना है पैरेलल तो नहीं है, और दूसरी चीज है वो इंटरसेक्ट नहीं करते, उसके लिए क्या प्रोसेस है, अपनी इंटरसेक्शन वाला प्रोसेस सारा फॉलो करना है और एंड पे शो करना है कि दो इक्वेशन से जो वैल्यू आती है वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर वो नहीं होती तो वो स्क्यू लाइंस है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है इसका मतलब है कि दोज लाइंस इंटरसेक्ट। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड करना है, let's have a look at that. म्यू और लैम्डा की वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, दिस इज द वैल्यू फॉर म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा नाउ, ठीक है। आप इन वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में जाके इनपुट कर दें, आपके पास दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है, दो लाइंस है, उनमें से किसी के अंदर भी आप इनपुट कर दें लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, और उससे क्या आएगा, आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, किसी के अंदर भी इनपुट करते हैं। मैंने फर्स्ट के अंदर इनपुट किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ए बी की इक्वेशन के अंदर मैंने इनपुट कर दिया लैम्डा की वैल्यू, तो I get something like this, I get 3, 2 and 4 here. This is the position vector of the point of intersection of those lines, ठीक है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप जाके किसी भी इक्वेशन के अंदर इनपुट कर दो ऊपर, मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन के अंदर, और उससे आपके पास वो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका। ओके, नाउ आई थिंक दिस लास्ट थिंग, perpendicular distance between a point and a line. एक point और एक line के दरमियान perpendicular distance किस तरह से figure out करते हैं? If you have a point, let's say that's given by I plus 5j plus 6k, so vector form में लिखते हैं तो that's 1, 5 and 6. This is the point here, right? इसको मैंने represent कर दिया figure के अंदर, this is the point. And there's a line here AB. आपको क्या करना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम अ लाइन। रिमेंबर जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइन की बात करते हैं, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट वी टॉक अबाउट। So distance of that point from this line, from the line AB. How do you figure this out? P का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, that's 1, 5 and 6, that's given. इस पॉइंट पे आके आपका ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा ना, इसको हमने लेट्स से इसको एक नाम दे दिया, let's say this is x, this is line AB. AB के ऊपर पॉइंट x है जहां पे P से परपेंडिकुलर आके इसको मीट करते हैं, राइट। अब ये x पॉइंट क्या होएगा, इसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, AB लाइन के ऊपर लाई करता है वो। AB लाइन क्या है, दैट्स 4 plus lambda 0 minus 2 lambda 1 minus 3 lambda, दिस इज द लाइन AB। अब वो x पॉइंट क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब ये है कि उसका पोजीशन वेक्टर इसी फॉर्म का होएगा, इसी इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है।
तो OX जो है that is 4 plus lambda minus 2 lambda 1 minus 3 lambda. अब मसला ये कि हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, लेकिन वो इसी फॉर्म का है। लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें फिगर आउट करनी है। फॉर्म यही होगी बिकॉज वो बी के ऊपर लाई करती है। हमने क्या किया, पॉइंट हमने वही देखा, और OX X का पोजीशन वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया कि that since it lies on this line AB, it's of this form to up line की इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये PX वेक्टर फाइंड कर लेंगे। OP हमारे पास आ गया, हमारे पास OX भी आ गया, हम PX फाइंड कर सकते हैं। PX is equal to OX minus OP, right? Position vector of the second point minus position vector of the second of the first point, OX minus OP किया, ये हमारे पास आ गया PX। This is your PX, okay? PX का वेक्टर हमारे पास आ गया। अभी जो PX वेक्टर है वो क्या वेक्टर है? This is actually perpendicular to the line AB. PX vector is perpendicular to the line AB. वही तो हम वहीं से हमने स्टार्ट किया था कि P से एक लाइन आ रही है X के ऊपर such that it makes a perpendicular with the line AB. Now PX and AB are perpendicular. इसका मतलब ये है कि PX वेक्टर जो है और जो AB की डायरेक्शन वाला वेक्टर है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा that should be equal to 0. ठीक है, so PX वेक्टर हमने वैसे लिख लिया 3 plus lambda minus 2 lambda minus 5 and so on, और AB का हमने डायरेक्शन वेक्टर उठा लिया यहाँ से, because डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे ना AB की, कि उसकी डायरेक्शन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, 1 minus 2 and minus 3। पूरी इक्वेशन तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल OX हमने एक पॉइंट लिया था, डायरेक्शन जो है that is this 1 minus 2 and minus 3, this is the डायरेक्शन वेक्टर जो लैम्डा के साथ लगा हुआ है। हमने क्या किया, हमने कहा कि जो PX वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट with 1 minus 2 and minus 3 should be equal to 0 because वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ये डॉट प्रोडक्ट हमने इक्वल टू 0 करके सिंप्लीफाई किया सब कुछ, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। ठीक है, अब अगर उसने कहा होता कि आप ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करें, यानी X का पोजीशन वेक्टर फाइंड करें, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, अब इसके अंदर पुट करके अब उसको बता देते हैं कि अच्छा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन वेक्टर जो वो ये बनता है, उसके अंदर लैम्डा की वैल्यू इनपुट की 4 minus 2 minus 2 एंड सो ऑन, ये आपके पास आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर X का पोजीशन वेक्टर। ओके, जिस पे वो परपेंडिकुलर बन रहा है उस पॉइंट से। अगर उसने पूछी होती लेंथ क्या है, length of distance of that point from the line, distance of that point from the line, तो बेसिकली ये PX वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, है ना? PX वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, that is the distance between that point and the line. PX वेक्टर क्या था? We found that here 3 plus lambda minus 2 lambda minus 5 and so on. उसके अंदर भी लैम्डा की वैल्यू इनपुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू इनपुट की, ये हमारे पास PX वेक्टर आ गया। ठीक है, इसकी लेंथ चाहिए हमें, इस वेक्टर की PX वेक्टर की हमें लेंथ चाहिए, तो उसमें आप मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगा दोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ P from AB, that is PX का magnitude, that's 1 square plus 1 square plus 1 square plus square root, that turns out to be square root of 3. This is the perpendicular distance of point from the line, and this is the standard method that you follow for that. Okay, that's all in vectors. इसका बहुत syllabus reduce हो गया, planes वाला तो मुश्किल part था, that's out of the syllabus now. So that's all about vectors. Okay, thank you for watching. That's it for today. Allah Hafiz, and I'll see you again.